جی السلام علیکم۔ جی معاف کرنا، یہ زوم چونکہ 45 منٹس کے بعد اس سے بند ہو جاتا ہے تو بند ہو گیا تھا، آپ لوگ پھر دوبارہ آن ہوا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے عرض کر رہا تھا ابھی درس سے پہلے کہ ہم لوگ یہاں تک آئے تھے۔ جی جی ایک منٹ۔ جی 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 نہیں نہیں، ابھی وہ 45 منٹس کا کیا تھا، ہو گیا تھا تو خود بخود بند ہو گیا تھا۔ ابھی شروع کیا میں، ابھی آ گیا دیکھیے۔ جی 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 سر، اچھا اچھا، نہیں آپ کا آئیکن بتا رہا تھا۔ جی جی صحیح، اچھا 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 اچھا، اب ہو جائیے آپ۔ جی جی حضرات، تو اگر آپ لوگوں کو اس میں جی درس نمبر 8 جو ہے میم ساکین، میم اور میم مشدد، نون مشدد، میم واو نون اور مشدد کے قاعدے ہیں۔ اور اس میں جو ہے جیسا کہ ہم اس سے پہلے اوپر پڑھے تھے، نون کا قاعدہ، یعنی نون پہ اگر جزم ہو، نون ساکن ہو، اگر آپ لوگ ابھی جوائن کیے ہیں تو کتاب روح پہ تجوید جو ہے، اس کا میں ٹائٹل بتا رہا ہوں پھر سے، یہ روح تجوید کتاب ہے، واٹس ایپ گروپ میں اویلیبل ہے، آپ لوگ اس کو کھول لیجئے، ڈسکرپشن میں یا آپ کو اس میں مل جائے گی یہ کتاب۔ اس کے پیج نمبر 8 پہ آ جائیے، ایک منٹ، پیج نمبر جو ہے، ہاں پیج نمبر 5 ہے، روح تجوید کتاب کا پیج نمبر 5 ہے۔ تو اس میں لام جلالہ پڑھے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے، اور وہ بریک آ گیا تھا زوم کا 45 منٹس کی کلاس کا، ابھی دوبارہ شروع ہوئی ہے۔ تو لام جلالہ کے بعد لام جلالہ کا بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم میں جو دوسرا لام ہے، الف لام لام ہے، بیچ والا لام، اس کو لام جلالہ کہتے ہیں۔ تو یہ لام جلالہ کو موٹا باریک کب پڑھنا، یہ لام جلالہ کے قاعدے میں ہے، پیج نمبر 5 میں۔ اس کے بعد ہم درس نمبر 7 نون کے بارے میں پڑھے تھے، نون ساکن اور نون تنوین۔ نون ساکن کس کو کہتے ہیں؟ یہ نون پہ جو ہے جب جزم ہوتا ہے اس کو ساکن کہتے ہیں، یعنی رک جاتا ہے، جیسا ان، بن اور تن جو بھی ہے، نون کو روک دے رہا ہے تو یہ نون ساکن۔ تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر، دو پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ تو نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ، اس کو تفصیلات میں انشاءاللہ ایک ایک بتاؤں گا میں۔ اب شارٹ میں آپ کو کیا کیا پڑھنا ہے ایک ہی بار میں بتا دے رہا ہوں۔ تو یہ درس نمبر 7 نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدے ہیں۔ اس کے بعد آپ آئیں گے درس نمبر 8 میں، میم ساکن، نون مشدد اور نون مشدد کے قاعدے ہیں۔ اس کے 3 قاعدے ہوتے ہیں۔ تو یہ درس نمبر 8 میں نون کے میم کے بارے میں پڑھیں گے، میم ساکن اور میم مشدد اور نون مشدد کے۔ اس کے بعد اگر آئے تو ہم کیا پڑھیں گے، اس کی بھی مثال کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور درس نمبر 9 ہے مد و قصر۔ مد و قصر، مد کہتے ہیں آواز کے کھینچنے کو، اور مد اس میں مدہ اصلی ہے، اور یعنی آواز کو کب کھینچتے ہیں، کب روکتے ہیں۔ قصر کہتے ہیں چھوٹا، کم کر، تو آواز کو کب کھینچنا، کم کرنا، یہ مد و قصر ہے۔ اس کو بھی آپ تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے صاحب جی اس کے بعد درس نمبر 10 یعنی 10 ہے ادغام۔ ادغام یعنی داخل کرنے کو کہتے ہیں، اور ادغام کی 2 قسمیں، ادغام صغیر، ادغام کبیر، یہ بھی جو ہے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے 11واں نمبر ہائے ضمیر درس، اور 12واں نمبر ہے وقف و ابتدا۔ وقف و ابتدا یعنی کب رکنا، کب اسٹارٹ کرنا چاہیے، آواز کو کب روک دینا اور کب اس کو آواز کو کھینچ کے پڑھنا۔ اس کے بھی اقسام وغیرہ، اس کی تفصیلات ہیں، آگے پڑھیں گے۔ وقف یعنی رکنے کے کتنے طریقے ہیں قرآن پڑھتے پڑھتے، جیسا کہ ایک جگہ قرآن میں ہے
वकीला मन राक बोल के एक जगह आया है, यानी वहां रुक रहे हैं लेकिन वहां पे सकता हो रहा है, आपकी आवाज को नहीं तोड़ रहे हैं, वहां पे रुक नहीं रहे हैं, बस थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं, टेम्परवरी। वकीला मन राक, वकीला मन राक, तो बगैर सांस तोड़े के रुकते हैं। तो इस तरह के इसमें मिसालें देके बताया गया है। उसको कहते हैं सकता, जहां आप आवाज तोड़ेंगे नहीं बल्कि पढ़ते हुए थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, उसको सकता कहते हैं। अच्छा, अलामत वक्त आती है कुरान में, ये मीम तोए जीम, ये हम पढ़ते वक्त पढ़ेंगे कि मीम के वक्त क्या है, ये वक्फे लाजिम है, यानी पढ़ते वक्त जरूर रुक जाना चाहिए, वहां मिला के नहीं पढ़ना, मिला के पढ़े तो माने बदल जाएंगे। जैसा कि हम उर्दू में बोलते हैं कि उठो उठो मत जाने दो, अगर कोई जुमला बोल रहे हैं उठो मत जाने दो, अगर वहां उठो पे आप रुके किसी को, सॉरी रोको मत जाने दो, कोई आदमी को आप बोल रहे हैं कि रोको मत जाने दो, लेकिन वहां नहीं रुके, अगर आप बोले रोको मत जाने दो, उसको रोको रोको मत जाने दो बोले, ऐसा हो जाएगा। तो कहाँ रुकना, कहीं नहीं रुक, कहाँ नहीं रुकना, ये आपको अलामत के रोमोज जो बोला था आपको, ये ऐसे कोट्स आते हैं मीम के जैसा कहीं आ गया कुरान में आयतों के बीच में, तो वो वक्फ लाजिम है, जहाँ ठहरना जरूरी है, वरना माने बदल जाने का इम्कान है। तो ये जो है ये इसको वक्फे मुतलक कहते हैं। यहाँ पर वक्फ करना और बाद के अल्फाज से इब्तिदा जायज़ है, यानी रुक सकते हैं आप। और तीसरा है वक्फे जायज़, जहाँ पर रुक जाना बेहतर है, और यहाँ रुक भी सकते हैं, मिला के भी पढ़ सकते हैं। तो ये छोटे छोटे आपको तकरीबन 8 पेजेस की ये छोटी किताबचा है। लेकिन हम जाएंगे अब तफसीली किताब में, जो कि शेखुल तजवीद हजरतुल अल्लामा मौलाना अब्दुल गफूर रहमताबादी कादरी साहब की लिखी हुई किताब है। ये किताब भी छोटी जो हम पढ़े रूहुल तजवीद, ये हजरत कारी जमाल मोहम्मद ताहिर साहब की थी। ये मैं आपको थोड़ा फास्ट ट्रैक में ले गया और ये बता दिया कि ऐसा ऐसा है, लेकिन इसको मश्क की जरूरत है। देखिए, तजवीद व खिरत में सबसे बड़ा जो किरदार है, जो मेन चैप्टर पढ़ने का है, वो है मखारिज हुरूफ। मखारिज हुरूफ जान है समझिए उसकी, अगर जिसको मखारिज हुरूफ आ गए उनको 50% तकरीबन कमो पेश तजवीद और खिरत आ गई समझी। और दूसरी बात क्या है, अहम आपको बताना ये था, एक मिनट, जी जी, जी बहरहाल, तो ये हम आज आज का जो सबक हम पढ़े हैं अब तक, रूह तजवीद से पेज नंबर 1 से पेज नंबर 9 तक, जिसमें मुख्तलिफ आपको चैप्टर्स जो पढ़ने के हैं तफसील दी, उसके मैं सरसरी तौर पे इंट्रोडक्शन दिया आज। तो जो लोग अगर किताब कॉपी के साथ हैं तो आप लोग लिख ले सकते हैं। मैं इसका वाइट बोर्ड खोलना चाह रहा हूँ ताकि मैं कुछ लिख के आप लोगों को वो करूँ। एक मिनट है। आने तो फरीद भाई जी ऊपर मीटिंग का नहीं, आप शेयर स्क्रीन क्लोज कर दीजिए पहले। अच्छा, ऊपर टॉप में आ रहा हूँ मैं, जी जी, शेयर स्क्रीन का जो सबसे टॉप में ऊपर आ रहा, बीच में लिखा हुआ आ जी जी, रहा, हाँ शेयर स्क्रीन स्टॉप पर, स्टॉप शेयरिंग, स्टॉप शेयरिंग हाँ वो करके फिर जी हाँ, व्हाइट बोर्ड खोल। जी जी। अब इसमें जो है व्हाइट बोर्ड खोलना था मुझे कुछ देर के लिए। हाँ, यहाँ आ गया, जी जी, अल्फा से। नहीं, नहीं, कैंसिल, शेयर व्हाइट बोर्ड, चलिए, ये व्हाइट बोर्ड खोलो बेटा, एक फ्रेश ले लो, सबको शेयर कर, हो गया ना, इसको बंद कर, सबको दिख रहा ना, हाँ
आप लोगों को दिख रहा है ये बोर्ड, व्हाइट बोर्ड क्लियर करना है तो अब वो आपका माइक बंद है वो। जी जी, माफ करना, ये थोड़ा सा वाईफाई सता रहा था, अभी शुरू हुआ है दोबारा। ये कुरान शरीफ को जो हम पढ़ते हैं उसके तीन तरीके हैं। एक है हदर, हे दाल रे हदर है, मैं क्या है इसको बताऊंगा आपको। दूसरा है तदवीर, तदवीर। और तीसरा है लहन, लहन। माफ करना, ये कर्सर चूंकि ये बोर्ड की तरह नहीं है तो जरा अपने हिसाब से लिखा जा रहा है। रिपीट। तो ये तीन चीजों, तीन तरह से कुरान को पढ़ते हैं। वैसे तो देखिए कुरान शरीफ चूंकि ये अरबी जुबान में है और अल्लाह ताला इसको सबकी आसानी के लिए, क्योंकि हर एक का लहजा कुलिकियल अंदाज अलग होता है, तो हम जो कुरान शरीफ अक्सर सुन्नी हजरात और कहें अपने हनफी मसलक के लोग, हम लोग पढ़ते हैं सैयदना आसिम कुफी रजी अल्लाह ताला अन्हु बरिवायत हफ्स की रिवायत से हम पढ़ते हैं। तो इनके पास कोई इख्तिलाफ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कि कुरान और तजवीद और जो रिवायत से हम पढ़ते हैं सैयदना हफ्स, इससे तमाम सिलसिले और तमाम जो मुसलमानों के मुख्तलिफ तबके हैं, चाहे आप अहले सुन्नतुल जमात ले लीजिए, तबलीगी जमात या जमात इस्लामी वगैरह वगैरह, सलफ़ी, सो भी मुत्तफिक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोई इख्तिलाफी मौजू नहीं है तजवीद। सबसे अच्छी बात यह है कि इससे हम सब जुड़े हुए हैं, तजवीद में कोई इख्तिलाफ किसी का नहीं है। लेकिन इसको पढ़ने के दो बड़े तरीके हैं। एक तरीका है, यानी आपने जो आसान चुना इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और हम लोग सुन्नी लोग जो चुने हैं वो हजरत इमाम आसिम कुफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत से हम पढ़ते हैं। उन्हीं की रिवायत बरिवायत हफ्स। तो इसलिए क्यों चुने, क्योंकि ये बहुत आसान है पढ़ने लिखने में भी, और इसकी तिलावत करने में भी, छपने में भी। तो इसमें बहुत ही ये कॉमन है। हम जो पढ़ते हैं, आप लोग याद रखिए, बोल के लिख लीजिए, हम तिलावत करते हैं कुरान सैयदना इमाम आसिम कुफी रहमतुल्लाह अलैह अन हफ्स रजी अल्लाह ताला। तो ये आसान फहम है, इसलिए हम चुने हैं। इससे हटके भी कुरान शरीफ पढ़ा जाता है, जिसको सबा व अशरा कहते हैं, 7 और 10 तरीके। ये क्यों है? क्योंकि बाज़ अरब में कबाइल ऐसे हैं जो दूर दराज के मुकामात के, उनका लहजा बात करने का अंदाज अलग होता है। तो उस जमाने में ही कुरान को जो तरतीब दिए थे, तो उसी वक्त ये राइज हुआ था। अलग अलग जो है कुरान को पढ़ने के तरीके हैं। सबा व अशरा थोड़ा डिफिकल्ट तरीका है, इसके कुर्रा भी बहुत, पढ़ने वाले बहुत कम हैं। हमारे मोहल्ले जहनुमा में एक हमारे सीनियर कारी थे, हैं अनीस अहमद साहब, वो अल्हम्दुलिल्लाह सबा अशरा के हैं खारी, और दूसरे अहबाब हैं, लेकिन उसमें काफ़ी मेहनत करके पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हर रिवायत अलग अलग अंदाज से उसमें पढ़ी जाती है। जैसा हम सीधा सूरह फातिहा पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐसा सीधा सीधा पढ़ते हैं ना, उसमें वैसा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मी मालिकी यौमिद्दीन, इस तरह पढ़ते हैं। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट तरीका है और बहुत ही उसको सीख के पढ़ना चाहिए। तो आप लोगों को परेशानी की बात नहीं है। सबा व अशरा तरीका सीखने की हमको वो नहीं है। बेसिकली सैयद नासिम कुफी रज़ी अल्लाह ताला की रिवायत से हम पढ़ लिए तो हमारी सेहत के लिए काफ़ी है फिलहाल।
تو اب جو قرآن کو ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ دو بڑے طریقوں سے ہٹ کے ایک جو ہم قبول کر لیے ہیں، جس پہ ہم چل رہے ہیں، اسی کو ہم لے کے چلیں گے، جس کا نام سیدنا عاصم کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے قرآن پانی ملا۔ تو عاصم کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کیا ہے، اب آپ پڑھیں گے تو اس کو تین طریقے سے پڑھتے ہیں قرآن۔ کون سے وہ تین طریقے ہیں؟ ایک ہے حدر، یہاں انگلش میں بھی لکھتا ہوں تاکہ آپ کو اگر عربی پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے تو میں انگلش میں بھی لکھتا ہوں۔ یہ پہلا طریقہ جو ہے اس کا نام ہے حدر، HADER، حدر، یہ حدر ہے۔ دوسرا ہے سٹم، دوسرا ہے تدویر، TADWER، تدویر۔ اور تیسرا ہے لہن۔ لہن عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو قاری ہیں بولتے جو ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں جیسا کہ قاری کس کو بننا ہے، ارے جا کے مظاہروں میں پڑھنا ہے، جلسے جلوس میں پڑھنا ہے، اسٹیج پہ، وہ سمجھتے ہیں۔ اصل تجوید کا نام صرف وہ نہیں ہے، اصل جو تجوید و قرأت ہے، آپ کو پہلے قواعد آنا، مخارج حروف آنا، اس کے تمام پڑھنے کے جو ہے گرامر جو ہے، مطلب پڑھنے کا جو تجوید و قرأت کے علاوہ جو قواعد ہے وہ آنے کے بعد آپ کو جو ہے اب یہ تین طریقے سے پڑھا جاتا ہے عام طور پہ۔ حدر کیا ہے؟ جو تو آپ نماز میں پڑھتے ہیں اس کو حدر کہتے ہیں، جیسا تیز تیز پڑھتے ہیں، حفاظ بیٹھ کے مشق کرتے ہیں، جیسا تیز تیز نماز میں آپ دیکھیں گے امام صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس طرح تیزی سے پڑھنے کو حدر کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ہے تدویر۔ تدویر یعنی عام طور پہ حدر اور تدویر دونوں ہی نمازوں میں بھی پڑھا جاتا ہے، یعنی تھوڑا سا حدر سے آہستہ پڑھتے ہیں ذرا رکوع کے، جیسا کہ عام طور پہ نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی خالی بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہے تیز تیز تو وہ حدر ہو گیا، اور تدویر نماز کی حالت میں ٹھہر کے جو پڑھا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے اور آرام سے پڑھے۔ تو جیسا اس کی میں مثال دیتا ہوں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ حدر کی شکل تھی، تھوڑا آپ رک کے آہستہ آرام سے پڑھتے ہیں۔ تو یہ حدر تدویر قریب قریب ہے، لیکن جیسا کوئی حافظ مشق کر رہا ہے یا ہم بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں قرآن اکیلے میں تو تھوڑا تیز سے پڑھتے ہیں تاکہ ہم ایک پارہ یا جو بھی پڑھیں، 2 پارے 3 پارے جلد سے جلد پڑھیں۔ وہ تیزی کی حالت میں جو پڑھتے ہیں حدر ہے، درمیانی روش جو ہے میڈیم رینج کا جو پڑھ رہے ہیں اس کو تدویر ہے، جیسا کہ میں بھی پڑھ کے بتایا۔ تیسرا والا ہے لہن۔ لہن یعنی وہ اس میں مختلف آیتوں کو مختلف شکلوں میں پیش کرتے ہیں، جیسا کہ آپ مظاہروں میں دیکھتے ہیں قاری کان کو ہاتھ لگا کے پڑھتے ہیں آرام آرام سے، اور ریڈیو پہ آپ سنتے ہیں، قرأت ٹی وی پہ سنتے ہیں، اس کو لہن کہتے ہیں۔ اس کی ایک شکل پیش کرتا ہوں میں۔ ہمارے استاد محترم مصباح القراء حضرت علامہ حافظ و قاری عبداللہ قریشی الازہری صاحب، امام و خطیب سابقہ جامع مکہ مسجد پڑھا کرتے تھے لہن۔ ہم ان کے پاس لہن پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، ہمارے استادوں میں سے ہیں، وہ بڑے استاد ہیں، تو ان کی جو ہے کوشش کرتا ہوں میں لہن یہ آپ کو سنانے کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم. تو یہ جو ابھی پڑھنے کا شرف حاصل کیا یہ لہن کی ایک شکل تھی. تو آپ لوگ بحیثیت اسٹوڈنٹ پریشان مت ہوئیے. جو تینوں حدر ہے یا تدویر ہے یا لہن ہے یہ تو اچھا آپ تجوید سیکھنے کے بعد کا ہے، لیکن آپ کی یہ اس میں رہے، علم میں رہے کہ حدر کیا ہے، تدویر کیا ہے اور لہن کیا ہے، تاکہ آپ کو پوچھے کوئی کہ آپ اسٹوڈنٹ خیرت کیا بتائیے لہن کیا ہوتی ہے، تدویر کیا ہوتی ہے، اور یہ کیا مطلب لہن، تدویر اور حدر کیا ہے، تو آپ اس کی شکل آپ ان کو بتانا چاہیے. اور یہ ایگزاموں میں بھی آتا ہے، جامع نظامیہ کے امتحان میں تجوید و قرأت کے لکھتے ہیں کہ قرآن کو کس وجہ سے پڑھ سکتے ہیں، تو آپ یہ تینوں لکھ سکتے ہیں. تو آج کے سبق میں الحمدللہ ہم جیسا کہ یہ چیزیں کمپلیٹ کر رہے تھے. جی تو یہ قرآن شریف کے جو ہے روح تجوید کے سے ہم پڑھے تھے ابھی. اس میں مختلف آپ کو میں سلیٹس بتایا، تقریباً 9 پیجز، اور بریف ڈسکرپشن دیا تھا کہ اس میں ہم کو کیا کیا پڑھنا ہے. تو قرآن شریف کے جو پورے قرآن شریف ہے اپنے پاس ماشاءاللہ سے، ہم تقریباً لوگوں کو معلوم ہے قرآن میں 114 سورے ہیں، 114 سورے ہیں، اور 6666 آیاتیں ہیں، 6666 آیاتیں ہیں. ان تمام کو جو ہے یہ 29 حروف میں لکھا گیا ہے، یعنی الف با سے لے کے یا تک، اس سے ہٹ کے کوئی 30th حرف نہیں ہے الحمدللہ. تو یہ اب یہ 29 حروف جو ہے اسی کی آپ کو مشق کرنا ہے، کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے اس کو، اسی کا نام یعنی پارٹ آف دا تجوید ہے، جو کہ آپ کو کیا نام ہے مخارج حروف، کون سا حرف کہاں سے ادا ہونا ہے. تو آج ہم مشق کریں گے یہ 29 حروف کی پڑھ کے. جی تو آئیے پڑھیں گے. بک نمبر 3 نکالیے آپ، پیج نمبر 3 نکالیے. یہ روح تجوید میں اگر واٹس ایپ گروپ میں جو منسلک ہیں ان کو آلریڈی دستیاب ہے، نہ ہو تو آپ اپنے اسکرین پر دیکھ کے اس میں سے بھی پڑھ سکتے ہیں جو میں بتا رہا ہوں. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف، دیکھیے الف جو ہے یہ لکھا ہوا، اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، اس میں 3 حرف رہتے ہیں، الف لام فے. یہ الف لام فے اس میں چھپا ہوا ہے، اس کو اسی لیے الف کہتے ہیں. ہاں اب با جو پڑھتے ہیں بے الف با ہے، یہ تا تے الف تا، تو آپ پڑھیں گے الف با تا سا. یہ سا کے وقت زبان کی نوک تھوڑی باہر کھینچنا چاہیے، زبان کی نوک تھوڑی سی آگے آ کے یہ الف کو آواز کو کھینچیں گے. سا، سا کے وقت زبان کی نوک تھوڑی باہر آنا چاہیے. جی اس کے بعد ہے جیم. تو سا ہے، اس کے بعد جیم. جیم یہ ہے، جیم میں بھی دیکھیے جس طرح کے الف میں تھے 3 حرف ہیں، جے یہ میم. اگر آپ دیکھیں گے یہ جیم کو اس طرح پڑھا جاتا ہے، جیم جے یہ میم جیم. اس کے بعد ہا ہے، ہا کو بھی ہے اور الف، یعنی ہر حرف کو آپ الف لگاتے جا رہے ہیں. یہ باس کو چھوڑ کے جس میں 3 حرف والا حرف ہے اس کو چھوڑ کے آپ دوسرے پڑھ رہے ہیں، اس میں ایک ایک الف کا اضافہ ہے. تا کو الف لگا دیا، سا کو الف لگا دیے. یہ کیوں لگا کے پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ آپ کو حرف کی
आवाज खींच के पढ़ने में और उसकी आवाज पूरा निकालने में आसानी हो। अलीफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, उसके बाद दाल। देखिए ये 3 हर्फ वाला हर्फ है, दाल में भी 3 हर्फ छुपे हुए हैं, दाल, अलीफ, लाम, दाल। उसको थोड़ा खींच के पढ़ेंगे, दाल, जाल। जाल के वक्त भी जुबान की नोक बाहर लाएंगे, जाल, इस तरह से जाल। 4 हर्फ ऐसे हैं अरबी के जिसमें आप जुबान की नोक थोड़ी बाहर लाना पड़ता है। अक्सर लोग सबको जो है एक जैसा पढ़ते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पे अभी आगे आ रहा है, अभी तो दाल और दाल पढ़ेंगे, उसके बाद रा। अब यहाँ 2 हर्फ वाले शुरू हुए, देखिए रा, रे, अलीफ, रा। रे पे जब जबर आता है तो उसको पुर पढ़ा जाता है, मोटा पढ़ा जाता है, रा। और ये जा है, जा। अक्सर जो है लोग ये जाल को भी और ये जा को, दोनों को भी जा बोलते हैं, जाल बोलते हैं, इसको जा बोलते हैं, गलत है। ये जाल के वक्त जुबान की नोक बाहर आना चाहिए, जाल, जाल, इस तरह से जाल। इसका कैसा मालूम होगा? हर्फ इसके पहले अलिफ लगा देना, अज। अज अगर आप बोलेंगे तो जहां जाके रुक रहा है, ये अज है, अज। और ये रा है, ये जा है। तो हम जा तक पढ़े। अब आप लोग मश्क करिए एक बार, आप लोग भी अपने अपनी आवाज में। एक एक सेकंड देता हूं मैं आप लोगों के लिए, मश्क करिए। अलीफ से जाल तक पढ़ा है ना, रा तक। चलिए आप लोग भी मश्क करके सुनाइए। अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग, अनम्यूट कर लीजिए, एक एक जने करके सुनाइए, अब जितने भी लोग हैं। जिसको मश्क करना है, 1-2 सेकंड के लिए रोक रहा हूं मैं अपना बयान, आप लोग मश्क करके बताइए अलीफ से रा तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी पढ़िए, आपकी आवाज आ रही है माशाल्लाह। अलिफ, बा, ता। जी, हंसिए मत, हंसिए मत, ये अल्लाह का कलाम है, उसके हुरूफ है, हंसना नहीं चाहिए। जी सुन रहे हैं, बोलिए, सब सुन रहे हैं आपकी आवाज, बोलिए, पढ़िए। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, जाल। जाल के वक्त थोड़ी जुबान की नोक बाहर लाइए, जाल, जाल। जाल, हाँ, इसको जाल बोलेंगे, जाल। और ये जो जा है रा के बाद वाला, उसके वक्त जुबान की नोक नहीं लाएंगे, जा इसके वक्त नहीं लाएंगे, उसके बाद वाला इसकी आवाज में जैसा कि प्लेन जाता है अज, ज, तो सिर्फ ये जाल के वक्त जुबान की नोक बाहर लाना है, इसके वक्त नहीं लेंगे, ये जा बोलेंगे, रा, जा, इस तरह से। चलिए अभी कोई और जा, जी हाँ, जा तक पढ़े। अभी और कोई, और मैं देख रहा हूँ दूसरे लोग हैं यहाँ, मोहतरमा आयशा है कोई, वो भी सुनाइए, आप भी मश्क करिए, क्योंकि इसमें देखिए तजवीद एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसमें आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आएगा। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी बोलिए, सुन रहे हैं आप। अलीफ से जा तक पढ़ के बताइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ, बा, जी, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, जाल, रा, जा। शाबाश माशाल्लाह। गालिबन आप ये दो के वक्त जुबान की नोक बाहर लाए होंगे, एक तो सा के वक्त, ता के बाद जो सा है उसके वक्त लाए जी होंगे, और जाल, ये जो जाल है दाल के बाद वाला, इसके वक्त जुबान जी की नोक थोड़ी सी बाहर लाना। यही जो है मखारिज हुरूफ में से शामिल है। अक्सर लोग जो नहीं लाते तो वहां माने बदल जाती है, एक के एक माने हो जाते। तो बस सा के वक्त जुबान की नोक बाहर लाना है, और जाल के वक्त अब तक, और आगे भी है लेकिन अब आज तक के सबक हम जाल तक पढ़े, रा, जा। तो ये जी रा के बाद वाला जो जा है उसके वक्त जुबान की नोक बाहर नहीं लाएंगे, उल्टे जब से प्लेन के जो जाता है आवाज अज, ऐसा अज। अरे किसी भी हर्फ का मखरज मालूम करना है तो उसके पहले अलीफ लगा देना, जैसा कि
अद है, अद दाल है, अद। तो जुबान की नोक है और जो है आपके जो क्या बोलना चाहिए, जो तारक है उसको जाके जुबान लगती है, अद वहां से अदा होता है। तो अस सा के वक्त देखिए अस बोलेंगे आप तो जुबान की नोक थोड़ी बाहर लाना। तो ये आज के वो था। आप इंशाल्लाह अभी कोई और पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़िए आप अलिफ से जा तक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप जो भी पढ़ाए हैं वो लिख ली थी मैं, वो जी जी पढ़ना चाह रही हूँ आपके सामने। जी कुरान मजीद को जो हम पढ़ते हैं इसके 3 तरीके हैं। नंबर 1 हदर, नंबर 2 तदवीर, नंबर 3 लहन। बेशक बेशक कुरान मजीद में 114 सूरे हैं जी और 6666 आयत हैं। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। आयत हैं आयतें हैं जी, आयत हैं। आयत जी। एक अगर हो तो अलिफ, आयत बोलेंगे, एक अगर जी, रही तो आयत, एक से ज्यादा है तो आयत हैं, आयात जी, आयात। आयत हैं, जैसा आयत कुरान हैं। में खुद है आयातुम बय्यिनात बोल के आया, खुली हुई निशानियां, आयातुम बय्यिनात। कुरान क्या है, आयतों पे डिपेंड है। तो आयातुम बय्यिनात, बय्यिनात इसमें बयान किया गया है, तो वो है। एक रहा तो आयत, एक से ज्यादा रहा तो आयात। जी जी, तो आप पढ़िए अलिफ, फिर। अलिफ बा, जी ता ता, जी जीम हा खा, जी दाल जोल, हम्म, रा जा, बस। सीन देखिए ये ज़ॉल बोले आप, ज़ॉल नहीं है, ये दाल है। आप मुंह खुला जोल, रखिए और जुबान की नोक थोड़ी बाहर लाइए, दाल। जैसा दाल कि आप मेरे को देख जाल, सकते हैं। जी हाँ, ज़ॉल नहीं बोलेंगे इसको, दाल दाल। दाल जाल, और ये जितने भी अलीफ के बाद है इसको थोड़ा थोड़ा खींच के पढ़िए, जैसा बा, ता, अलिफ वा, सा, ता, सा, जीम, जी जीम जीम, हा, हा, खा, खा, दाल, दाल, जाल, दाल, जाल, दाल। देखिए जुबान की नोक थोड़ी सी बाहर लाना, ये दोनों दांतों के बीच में थोड़ी सी बाहर। दाल, दाल, ये दाल। जाल, उसके बाद है रॉ, रॉ, रॉ। जी हाँ, और ये जा। ये जा, जो रा के बाद वाला जा है, जैसा हम जुकाम बोलते हैं, नजला जुकाम, ये जा से ही है। या जक़ात है, और कुरान की जो है जक़ात जो देते हैं हम, जक़ा, ये भी जे से आया है। इसके वक्त जुबान की नोक बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन आवाज में तेजी रहना। जैसा आप जहाज की आवाज निकालते हैं, अज अज बोलते हैं, तो जुबान की नोक अंदर रखते हुए अज जैसा बोलेंगे, वैसे वहीं से जा बोलेंगे, जा। जा, रा, जा। जी हाँ। तो अब तक के सबक में ये अलीफ से या तक जो हम पढ़े, उसी को प्रैक्टिस करिए। आपके पास व्हाट्सएप में भी और इसमें अवेलेबल है, ये किताब में भेजा था, आप प्रिंट करके अगर रख लिए तो बेहतर है। आपको ये काम आने वाला है इंशाल्लाह। जब भी आप खुद पढ़िए और बच्चों में जो है, जो खवातीन पढ़े अपने बच्चों में घर को में पढ़ाइए। तो जब हमारे उस्ताद फरमाते हैं, जब आप दूसरों को पढ़ाते हैं, जब ही आदमी सही सीखता है। अपन तालिब इल्म के जमाने में जब पढ़ते हैं तो कच्चा पक्का पढ़ते हैं, जब उस्ताद बनते हैं तो आपकी खुद की तालीम पक्की होती है। तो अब आपको पढ़ के खामोश रह जाना नहीं है, आप अपने बच्चों को, भाइयों बहनों को, घर वालों को भी पढ़ाना है। ये एक जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सीना बा सीना चलते हुए आ रही है। और कुरान शरीफ, माफ करना, यहाँ अजान हो रही है, जरा अजान के वक्त बात नहीं करना चाहिए। 2 मिनट मैं लूंगा, अजान की हो जाने दीजिए, फिर कंटिन्यू करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदक़ या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदक़ या रसूल।
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الذات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. अज़ा के बारे में आता है कि जब अज़ा देते हैं तो उसका जवाब दें मुकम्मिल. जो मौज़न बोल रहा है वो बोले सिर्फ हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह के वक्त ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़े. अज़ा होने के बाद ये पढ़े रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदन नबिय्या व रसूला. ये पढ़ने से बहुत फजीलतें आई है. अल्लाह ताला उस शख्स को जो है जन्नत में आला मुकाम अता करता है और उसके गुनाह माफ़ करता है. और अज़ा का जवाब दो तरीके से, एक तो अज़ा का जवाब आप 10 बलफ्ज़ दिए, दूसरा उसकी तैयारी में लग जाना चाहिए, वज़ू करके नमाज की तैयारी करना चाहिए इंशाल्लाह. तो अभी चूंकि ईशा की नमाज का वक्त काफ़ी रहता है तो ये 10 कंप्लीट करके हम लोग नमाज पढ़ेंगे. तो उसके नमाज के बाद की अज़ा के बाद की दुआ भी मैं पढ़ा हूँ, अभी तकरीबन को याद है, फिर भी पढ़ लीजिए. अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावती ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आती मुहम्मदा निल वसीलता वल फज़ीलता वद्दरजता रफ़ीअता वबअसहु मुक़ामम महमूदन निल्लज़ी वअदतहु वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामती इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद. चलिए बिस्मिल्लाह. अच्छा, अब एक दूसरी किताब और एक हमारे दोस्त जो है मोहम्मद अतहर अली साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, काफ़ी मेहनत से स्कैन करके सबकी सहूलत के लिए फौरी मुहैया किया, कंप्यूटर में भी डाउनलोड करके रखे अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये जो किताब है दूसरी, हम जो पहले पढ़े रूह तजवीद उसका नाम था. रूह तजवीद जो 8-9 पेजेस पे है, उसमें कंडेंस था समरी टाइप का. ये जो दूसरी किताब अभी मैं खोला हूँ उसका नाम है यस्सरनल कुरान. हम में से अक्सर लोग पढ़ते हैं यस्सरनल कुरान, लेकिन मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ लिखी हुई है. लेकिन ये तो तजवीद और क़िरात के शेख हैं यूनिवर्सिटी में, जैसा प्रोफेसर होते हैं, जामे निज़ामिया के प्रोफेसर ऑफ तजवीद लिखे हैं. उनका नाम है डॉक्टर शेख मोहम्मद अब्दुल गफूर खादरी रहमताबादी साहब. ये आप कई सालों साल जामे निज़ामिया में शेख तजवीद रहे हैं और आप मुरतब किए. और अल्हम्दुलिल्लाह जिद्दा में हर रमज़ान में आप तशरीफ़ लाते थे, मुझे कई बार मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ. इस हक़र के मकान में भी आप तशरीफ़ लाए, हमारे पास महफिल में भी आते थे. और जो है अल्लाह के फजल करम से बिलमुशाफा मुझे मिलने की उनसे शर्फ हासिल हुआ कई बार. और ये किताब जो है मैं खुद उनसे हासिल किया और असली किताब है मेरे पास, उसकी ये प्रिंट स्कैन की हुई कॉपी है. तो बहरहाल इसमें बोलना ये था कि उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में इसको लिखते कैसा है वो भी बताया गया है. अभी आप रूहुल तजवीद में देखिए, सीधा सीधा लिखा हुआ था. अब इसको आप लिखना भी आना चाहिए सिर्फ पढ़ने के अलावा. तो अलीफ को कैसा लिखते हैं, ऊपर से नीचे लाके, बे को ऐसा फिराते हैं, यहाँ से यहाँ देख रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पे अपने. तो ये लिखने का भी तरीका आपने फरमाया है. हाल में 6 महीने पहले कुछ आपका इंतकाल हुआ, 6 महीने या साल भर पहले. आप इससे पहले रमज़ान में यहाँ तशरीफ़ लाए थे. हज़रत हमारे शेख मोहम्मद अब्दुल गफूर रहमताबादी साहब, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, बहुत अच्छा काम करके गए. बल्ला घोड़े में आपकी अहलिया और दूसरे असहाब मिलकर उनका ये मदरसा चला रहे हैं. वो जो है उसका शायद इसमें डिटेल होंगे लास्ट पेज में मदरसे की. तो अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे. जी, उनका नाम है मदरसे मुहम्मदिया तालीमुल इस्लाम बल्लागुड़ा हैदराबाद में आपका मदरसा है. आपकी अहलिया मोहतरमा और दूसरे शागिर्द वगैरह उनके साथियाँ मिलके चला रहे हैं मदरसा. बच्चियाँ पढ़ते हैं आमतौर पे तजवीद क़िरात वगैरह दीनी कोर्सेज चलाते हैं. वैसे जामे निज़ामिया में आपकी फुल टाइम जॉब भी थी अल्हम्दुलिल्लाह. चलिए दोबारा हम लोग शुरू करते हैं क्योंकि कुछ देर के लिए बंद हो गया था.
ابھی جو ہے جی، تو یہ میں کہہ رہا تھا ہمارے استاد محترم جناب قاری شیخ التجوید عبدالغفور محمد عبدالغفور قادری رحمت آبادی صاحب کی جو کتاب ہے یہ لکھی ہوئی، یہ بہت ہی آپ کو جو ہے پریکٹس کرنے میں مدد دے گی، اور جو ہے اس میں یہ ہے کہ لکھنے کی بھی مشق کرائے حضرت جو ہے پڑھنے کے ساتھ ساتھ. تو آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک ایرو ہے الف کے ساتھ چل رہا ہے. الف اب جب لکھتے ہیں آپ تو اوپر سے نیچے کی طرف لکیر کھینچتے ہیں پین سے یا پینسل سے. تو ایسا لکھنے کا طریقہ بتایا ہے. یہ چھوٹے بچے اور بڑے ہر ایک کے لیے ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنے طریقے سے لکھتے ہیں تو لکھت صحیح نہیں جاتی، لیکن عربی کا جو قاعدہ ہے اس کو ایسا لکھا جاتا ہے. تو ایک نظر آپ پڑھ بھی لیجئے اور دیکھ بھی لیجئے. الف با تا سا جیم ہا خا دال دال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین قاف فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا بڑی یا چھوٹی یا. اس طرح سے آپ کے 29 حروف ہو گئے. میں سمجھ سکتا ہوں آپ لوگ یہ سمجھ گئے ہوں گے جو تختی میں بتایا ابھی. آپ لوگوں کو کچھ اس میں کوশ্چن کرنا ہو تو کریے گا. اگر کوئی سوال ہے یہ 29 حروف کے بارے میں آپ لوگوں کو تو ضرور کریے. کچھ پوچھنا ہو تو بتائیے. جی تو چلیے پھر آگے بڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کوئی سوال نہیں ہے، کوئی بھی کوশ্چن نہیں آیا آپ لوگوں کے پاس سے. مما کو بول کے آواز رہا وہ پروگرام اٹینڈ کر لیں. تو اب دیکھیے اس میں آپ کو کیا کیا پڑھنا ہے. یہ کتاب میں یہ بتایا گیا ہے اس میں. جی ایک تو ہے اس میں ابھی جو ہم پڑھے پہلے حروف تہجی تھے. حروف تہجی 29 خود پورے کتابوں میں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. اپنے ہر ایک کے جو کوئی بھی مسئلے کے لے لیجئے 29 حروف ہی ہیں. اس کے بعد آپ فہرست میں اس میں کیا کیا پڑھنا ہے دیکھیے. یہ کتاب میں یہ حضرت شیخ العزیز محمد عبدالغفور قادری صاحب کی لکھی ہوئی ہے یسرنا القرآن. تو اس کی فہرست میں ہے جو سبق ہم کو پڑھنا ہے تجوید کے بارے میں. اس میں پہلا سبق آپ نے لکھا ہے پیج نمبر 2 پہ مخارج حروف. اچھا اس کے بعد ہے منفرد حروف. مخارج حروف ہے اور منفرد حروف ہے. اس کے بعد ہے ترتیب وار حروف تہجی. پھر مرکب حروف، حرکت کا بیان، جزم اور حروف قلقلہ، جزم اور حروف قلقلہ اس کا بیان ہے. پھر حروف مدہ ہے، لین کا قاعدہ ہے، مد حکمی ہے، خالی حروف کا قاعدہ ہے، تنوین کا قاعدہ ہے، اظہار کا قاعدہ ہے، اقلاب کا قاعدہ ہے، تشدید کا بیان ہے، نون و میم مشدد کا بیان ہے، حروف قمری و شمسی ہے. پھر لام جلالہ ہے، را کا بیان ہے، ادغام ہے، ادغام کا قاعدہ، ادغام مع غنہ، ادغام بلا غنہ، اخفا کا بیان، حروف علت پر تشدید، میم ساکن کا قاعدہ، اظہار تاکیدی اور مد متصل، مد مفصل، مد لازم اور حروف مقطعات کا بیان، نون قطنی کا بیان، انا کا قاعدہ، وفق کا بیان جن میں الف پڑھا نہیں جاتا، جن میں الف پڑھا نہیں جاتا. اور اس کے بعد ہے الف مقصورہ، امالہ، سین اور صاد کا بیان اور سکتہ، تسہیل، ادغام کبیر، 5 کلمے مع ترجمہ، ایمان مجمل و مفصل اور درود شریف اور سورہ مزمل آیات حفاظت، منزل آیات حفاظت ہے اور اذکار نماز ہے، اذان کے بعد کی دعا، فرائض و وضو کی نماز، نماز جنازہ کا مسنون طریقہ، 40 دعائیں اور 40 احادیث. یہ جملہ 63 مضامین آپ نے اپنی کتاب میں لکھے جو نہ صرف قرآن شریف کی تعلیم دیے بلکہ ساتھ ساتھ آپ نے دوسرے جو بیسک چیزیں ہیں نماز، روزہ اور وضو وغیرہ کا بھی آپ نے
दुआएं वगैरह बताई है। मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपके हर एक के पास ये किताब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आपको मिल गई होगी। अगर नहीं मिली तो आप हमको व्हाट्सएप पे या फोन करके इत्तला दे सकते हैं, तो आपको ये किताब भेज दी जाएगी जो तकरीबन 60-65 सफ़ों पर कुछ है। इंशाल्लाह इसकी मशक कराई जाएगी डेली। तो आप लोगों को क्या है, साथ के साथ जो तजवीद के कवायद पढ़ रहे हैं तो साथ के साथ आप लोगों को वो भी हो जाएगा, क्या नाम है, मशक भी हो जाएगी, पढ़ने में आसानी होगी कुरान शरीफ अल्लाह चाहा तो, क्योंकि ये बेसिक कायदा है। अगर ये पढ़ेंगे तो आपको तजवीद अपने प्रैक्टिकल अंदाज में पढ़ने के काबिल हो जाएंगे कुरान। और पहले हम क्या करेंगे, हमारी नमाज सही करने की कोशिश करेंगे। नमाज से मुराद आप जो है 10 सूरे सीखेंगे। सूरे फातिहा के अलावा आखिर के जो सूरे हैं, सूरे फील से सूरे नास तक 10 सूरे होते हैं, सूरे फातिहा मिला के 11 सूरे। ये 11 सूरे हम पढ़ेंगे, उसकी मशक करेंगे तो पहले आपकी फर्ज नमाज सही हो जाएगी। उसके बाद ये तजवीद वगैरह कायदे ये डिटेल्स में हम पढ़ते रहेंगे रोजाना इंशाल्लाह। तो आप लोगों को अगर कोई सवाल करना है, कोई प्रैक्टिस करना है तो बोलिए, इंशाल्लाह कर सकते हैं आप। कुछ तो वक्फा दिया जाता है आप लोग के लिए। आज के जो सबक पढ़े हैं हम लोग 2-3 सेशनों में 45-45 मिनट के, उसमें अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तजवीद क़िरात के बारे में, लहन के बारे में, तो आप सवाल कर सकते हैं। आप लोगों को म्यूट ऑन कर लीजिए, म्यूट बने सबका, करके एक एक करके आप कुछ सवाल है प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो करिए अभी 10-15 मिनट के लिए। जी तो ऐसा लग रहा है मुझे कि अभी कोई सवालात किसी को करना नहीं है, और तकरीबन मैं समझता हूँ आज का सेशन भी कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो है हफ्ते के दिन रहेगी, हफ्ता या इतवार। इंशाल्लाह व्हाट्सएप के जरिए आपको इत्तला दी जाएगी हफ्ता इतवार, क्योंकि हमारा स्केड्यूल क्या था, जुमेरात, हफ्ता और इतवार, ये 3 दिन थे। उसमें बताया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में कि कब होने वाली है। अल्लाह ताला से दुआ है हमारे जमा होने को कबूल व मंजूर फरमा और हमारे लिए तजवीद का सबक आसान करे। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह। अल्लाहुम्मा अनिस वहशतिना फिल कुबूर, अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वर्ज़ुक़ना तिलावतहु आना लैलि व आना नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। या अल्लाह हमारे यहाँ जमा होने को कबूल फरमा, हमारे से जो कोताहियाँ हैं उसको दरगुजर फरमा। या अल्लाह इस कार खैर को सुनने समझने की तौफीक अता फरमा, और ये तजवीद का जो फ़ायदा है इसको हमारे लिए पढ़ना समझना उस पर अमल करना आसान बना दे सरकार के सदक़े में। या अल्लाह जो असातिज़ा गुजर चुके हैं, ख़ासकर हज़रत क़ारी जमाल मोहम्मद ताहिर साहब और हज़रत शेखुल तजवीद हज़रत क़ारी डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल गफूर रहमताबादी साहब और दीगर असातिज़ा इस्बाउल खुर्रा हज़रत हाफिज़ क़ारी अब्दुल्ला क़ुरैशी अल-अज़हरी साहब, और या अल्लाह जो असातिज़ा पर्दा कर गए हैं तमाम की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जा बुलंद करे, इसका सवाब उनको पहुँचाए, उनके ख़बर में नूर भर दे, और या रब्बुल आलमीन उनके दर्जा बुलंद करे, उन्होंने जो काम छोड़ कर गए हैं उसको करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी साहब, आमीन आमीन। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खासकर मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा हमारे भाई साहब मोहम्मद अली अख्तर साहब का, कि काफ़ी मेहनत से जो है उन्होंने वक्फे की किताबें मुहैया की, कम टाइम रात में अपना कीमती वक्त देके अल्लाह कहते दूर करे अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला जो है काम में आसानी अता फरमाए दीनों दुनियावी उमूर में, और जो है उनको दीन दुनिया में तरक्की अता फरमाए। और जो है जितने सामीन हैं, देखिए कोई मजमुआ 200, 500, 1000 का हो वो माना नहीं रखता। अगर दिलचस्पी से सुनने वाले और जो दिलचस्पी रखने वाले 2 भी स्टूडेंट आए तो काफ़ी है, क्योंकि एक को भी पढ़ाना काफ़ी है।
زیادہ لوگ رہنا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر محفل میں لوگ رہے. ان کی اپنی اپنی مصروفیت اور ان کی دلچسپی کا جو سامان ہے وہ بھی وہ رکھتے ہیں. جس کی دلچسپی ہے وہ بذوق آتے ہیں, شرکت کری آن لائن یا فزیکلی. بہت جو ہے قرآن سے جڑے رہنا تو بڑی بات ہے, کیونکہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. قرآن کو جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور الگ الگ مت ہو جاؤ. یہ قرآن کے توسط سے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں, بہت بڑی بات ہے یہ. اور قرآن شریف کا سننا, پڑھنا, اس کو دیکھنا یہ بہت برکت کی بات ہے. اور بار بار بولنے کے باوجود بھی, اطلاع دینے کے باوجود بھی تقریباً تعداد بہت کم ہے آن لائن کی بھی اور یہاں فزیکل بھی, فیس ٹو فیس. یہ ذوق کا پتہ چلتا ہے کہ آج کل قرآن کا اور تجوید سیکھنے کا ذوق کتنا کم ہے لوگوں میں. اور بہت تکلیف دہ بات ہے کہ جو ہے بمشکل 8-10 حضرات ہی جوائن کرے ہیں. تقریباً واٹس ایپ گروپ میں سمجھتا ہوں 65 سے زیادہ لوگ, 67 کچھ پارٹیسپینٹس ہیں, اس میں سے صرف 5, 6, 7, 8 یا 10 بہت تعداد بڑھنی چاہیے. اور اپنے جاننے والوں کو, رشتہ داروں, دوست احباب کو آپ لوگ پہنچائیے میسج کہ ایک جو ہے الحمدللہ کوئی اس وقت دے رہا ہے اپنا قیمتی, تو آپ لوگ بھی اپنا وقت دے کے استفادہ حاصل کریں. سب ہم اللہ کے لیے ہیں, ایک بار لوٹ کے اللہ کے پاس ہی جانا ہے. قرآن شریف کی تلاوت کرنا, سننا, پڑھنا یہ سب باعث مسرت ہے. اور ایک حدیث بچوں کو بھی لے کے بیٹھنے کے لیے بولے. جی بچوں کو بھی لے کے بیٹھیے, کیونکہ دیکھیے الگ الگ مدرس ایک گھروں میں آ کے پڑھانا تجوید کے ساتھ بہت مشکل ہو جاتا ہے. ابھی آن لائن کی سہولت ہے, ٹی وی پہ لگا دے سکتے ہیں آپ, اور کتاب بھی یہاں کھلی ہے, آپ لوگ کتاب بھی بتا سکتے ہیں بچوں کو. اس سے اچھا سنہری موقع اور کیا چاہیے. دیکھیے اگر یہ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں تو ہماری بدبختی ہے. اس کے بجائے ہمارے مشاہدے میں ہے بعض لوگ بچوں کو میوزیکل انسٹرومنٹ سکھا رہے ہیں, گٹار وغیرہ, اور غیر مسلمانوں کو ہائر کر کے ان کو پیسے دے کے سکھا رہے ہیں. قرآن کی جو تعلیم فری ہو رہی ہے اور اتنے اچھے پیمانے پہ ہو رہی ہے, آپ آج کل کے جو ذرائع ہے ایڈوانس یوز کر رہے ہیں الحمدللہ. اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اپنی قوم کو. اور قرآن سے دوری جو ہے یہ گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. اور یہ جو ٹیکنیکل ہے بات, بہت سارے سلسلے لے لیجئے اپنے سہروردی اور قادری, چشتی جتنے بھی ہے, اس میں بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں, درس قرآن, درس حدیث وغیرہ, مگر یہ تجوید و قرات کا بہت کم جو ہے سننے میں آتا ہے پڑھا رہے ہیں. ہمارے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد مصطفیٰ شریف صاحب سے میں جب عرض کیا آزاد صاحب میں تجوید و قرات کا شروع کرنا چاہ رہا ہوں, تو بہت آپ میری پذیرائی فرمائے, ہمت افزائی کی اور بولے کہ بہت اچھا کام ہے میاں, یہ شروع کرو آپ. اور لازم بھی ہے, جو قاری ہے, جو یہ فن سے واقف ہے, دوسروں تک پہنچانا چاہیے. تو اسی, کیونکہ پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے, کب چلے جائے, اور سینے میں یہ علم لے کے ہم چلے گئے تو فائدہ نہیں ہے. یہ تجوید کا جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے. سرکار کی حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اب یہ قرآن کی تجوید پڑھنا تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرمایا. ابھی میں شروع میں آیت پڑھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 210, اور ہمارے واٹس ایپ گروپ میں بھی میں وہ لکھ دیا ہوں اوپر ہی کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب, ان لوگوں کو جو ایک کتاب دی گئی ہے, یتلونہ حق تلاوتہ, پڑھتے ہیں اس کے حق کے ساتھ. حق کے ساتھ حق کیا ہے؟ حق یہ تجوید ہے, قواعد ہے. اگر اس کو نہیں سیکھیں گے تو پھر معنی جہاں کے کچھ بدل جائیں گے, پھر گنہگار ہو جائیں گے. پھر فرماتا ہے اللہ اولئک یؤمنون بہ, یہی لوگ ہیں جو قرآن کو اس کے حق سے ادا کرتے ہیں, وہی لوگ ایمان والے ہیں. وہ من یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون, جو اس سے روگردانی کرتے ہیں, اس کو نہیں مانتے یا اس کو نہیں, اس پہ نہیں حاصل کرتے علم تجوید و قرات کا, یا قرآن کو تجوید سے پڑھنا نہیں مانتے, وہ لوگ کیا ہیں؟ هم الخاسرون, وہ لوگ خسارہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں. یہ میں نے بول رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 121, 121 آیت آپ پڑھ لیجئے ترجمے کے ساتھ. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے الحمدللہ. ہر مسلک, چاہے وہ جماعت اسلامی ہو, تبلیغی جماعت ہو, اہل سنت الجماعت ہو, یا اور کوئی فرقہ ہو, جو بھی قرآن کے ماننے والے ہیں, یہ آیت سے انکار نہیں کر سکتے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اختلافی موضوع نہیں ہے یہ کرنا نہیں کرنا. یہ فرض ہے علم کا حاصل کرنا. اور تجوید جو ہے
मैं तो बोलता हूँ कि आजकल बच्चों को जो शादी में जहेज में कुरान खरीदते हैं तबरुक के लिए, तो कुरान के साथ साथ एक तजवीद की किताब भी खरीदे आप, वो भी कुरान शरीफ के साथ दीजिए तोहफे में, ताकि न सिर्फ कुरान पढ़े बल्कि तजवीद पहले सीखे मियाँ बीवी दोनों शादी से पहले, ताकि अपने बच्चों को भी पढ़ा सके। और बड़े जो नहीं सीखेंगे तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। तो ये अभी अभी एक अच्छा मौका है ऑनलाइन का और फेस टू फेस का भी, इससे फायदा उठाइए, पढ़िए। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बाज़ कुरान के पढ़ने वाले ऐसे भी हैं जिस पर खुद कुरान लानत भेजता है, क्योंकि सूरह फातिहा में की पहली आयत ले लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो सूरह फातिहा आप हम अक्सर पढ़ते हैं, अक्सर लोग उसमें गलती करते हैं शुरू की आयत में ही, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आइन की आवाज निकालना नहीं आता, रब्बिल आलमीन बोलते हैं, आलमीन आइन अगर नहीं निकालेंगे, रब्बिल आलमीन नहीं बोलेंगे तो माने बदल जाएंगे। देखिए रब्बिल आलमीन के माने क्या है, तमाम जहान का रब, वर्ल्ड, तमाम जहानों का रब। अगर उसको आइन की आवाज नहीं निकालेंगे, सिर्फ रब्बिल आलमीन बोलेंगे, तो नौजुबिल्लाह माने हो जाएंगे दुखों और परेशानियों का रब। तो और इससे पहले भी मैं फर्स्ट क्लास में बताया था ये कि अल्हम्द के माने हैं, हा से जो पढ़ते हैं, अल्हम्द के माने हैं तारीफ के। एक मिनट में बोर्ड खोल लेता हूँ ताकि उसमें लिख के बता सकूं आप लोगों को। सॉरी, थोड़ा चूंकि ये स्ट्रक्चर नया है, बटन्स वगैरह, तो थोड़े मुझे दिक्कत हो रही है शुरू में। जी जी, तो सूरह फातिहा की इसलिए मैंने लिया कि ये बार बार पढ़ी जाती है आयत, हमको जो है ना ये बार बार पढ़ी जाती है, उसके लिए हमको ये सूरह फातिहा की मिसाली दी है तो हमको समझ में आती है, क्योंकि सूरह फातिहा हर कुरान में, हर नमाज में पढ़ना है, वह फर्ज है। अगर किसी की नमाज में सूरह फातिहा छूट गई तो गोया कि उसकी नमाज ही नहीं हुई, नमाज दोहराना पड़ता है। तो हम तजवीज से नहीं पढ़ने से हर एक की नमाज अल्लाह माफ करे नहीं हो रही, तो दोहराने वाली बात है नमाज। तो बेहतर है कि अभी अल्लाह जो वक्त दिया है उसको यूज करते हुए सूरह फातिहा और आखिर के 10 सूरे कम से कम इतना आप तजवीज से सीख जाइए। उसके लिए ज्यादा वक्त दरकार नहीं होगा, मैं फास्ट ट्रैक से लेके जा रहा हूँ। सूरह फातिहा और आखिर के 10 सूरों की पहले मश्क करा देता हूँ, तो आपकी नमाज सेफ हो जाएगी, महफूज हो जाएगी और कबूल होगी इंशाल्लाह, क्योंकि तजवीज से पढ़ रहे हैं सीखने के बाद। अगर वो नहीं है वैसी, जैसी चाल वैसी है, अगर पढ़ते हुए जाएंगी टेढ़ी बिंगी, तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हमारी नमाज हो रही है नहीं हो रही कबूल, ये इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। तजवीद के साथ भी है तो जो है माने बहुत सारे बदल जाते हैं। एक मिनट में ये हाजरा में इधर आओ बेटा, ये जरा बोर्ड खोलो, इसमें वो ब्लैक व्हाइट बोर्ड आता था। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ, फरीद भाई स्क्रीन स्टॉप शेयरिंग करके व्हाइट बोर्ड स्टार्ट। अच्छा अच्छा, स्टॉप शेयरिंग करो बेटा पहले, ये चल करो जी जी, ये स्टॉप शेयरिंग जी। हाँ यहाँ सर हाँ, व्हाइट बोर्ड खोलो, हाँ व्हाइट खोलो जी, इसको डबल क्लिक करो बस जी। अभी अब आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है? हेलो हेलो जी जी, एक मिनट जी जी, आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है ये? जी हाँ जी जी, देखिए सूरह फातिहा जो है उसमें उसकी मैं आयत का वो दे रहा था। अब जो है सब आमतौर पे लोग पढ़ते हैं, नजर आ रहा, बोर्ड नजर आ रहा। जी जी, देखिए ये अल्हम्द, सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि, अल्हम्द है ना, अल्हम्दु लिल्लाहि, बेटी हाजिर सीधा बेटी रब्बिल, ये माउस से चूंकि लिख रहे हैं तो थोड़ा सा तकल्लुफ होगा।
जी, तो बहरहाल ये अलहम जो है, देखिए ये अलीफ लाम है, यानी अलीफ लाम और है ये अलहम। इसको हम अगर ये क्या है, है ये है, ये जो पढ़ रहे हैं आप, इसको अगर आप हे से पढ़ेंगे ऐसा, ये हे से, जी शुक्रिया, ये क्या है, ये अगर यहाँ पे हम सॉरी यानी अल हम, ये इसको नोट करिए आप, ये क्या है, हा है, ये वाला है हा, ये जो मैं लिखा, और ये वाला ये हा है। तो इसके माने, अलहम के माने हैं तारीफ। हमको सबको अक्सर को मालूम है कि हम के माने तारीफ के है, हाँ। और ये हम अलहम जो है, ये इसके माने हैं पुराने फटे कपड़े। अगर हे से बोले, नौजुबिल्लाह, हे से अगर बोले आप अलहम बोले, तो वो पुराने फटे कपड़े। तो अब आप सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, तो अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अगर है से अगर आप बोल रहे हैं तो उसके माने होते हैं तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए। अगर हे से बोल रहे हैं तो नौजुबिल्लाह माने होते हैं फटे पुराने कपड़े अल्लाह के लिए। तो आप बोलना क्या चाह रहे हैं, आपके दिल में क्या है वो नहीं है बोलना, लेकिन आपको सुनने वाला तो ये नहीं बोल देखता कि आपके दिल में क्या है, आपके मुंह में क्या है वो बोल रहे हैं। आपने किसी को कोई गलत बात बोल दिया या मुझसे गाली दे दिया, तो उन्हें मुझे पकड़ लेगा, थप्पड़ मारेगा मुझे कि तुम गाली क्यों दे रहे, हालांकि मेरे दिल में नहीं हो। मैं बोलूंगा नहीं भाई, मैं उसे बोल दिया, खाली दिल से आपकी बदतमीजी नहीं करना चाह रहा था मैं बोलेगा दिल कौन देख रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो सुन रहा हूँ मैं। तो इसी तरह से सरकार दो अलैहि वसल्लम की हदीस को आप यहाँ वो करिए, आप सरकार क्या फरमाएं कि कुरान के बास पढ़ने वाले ऐसे हैं जिन पर खुद कुरान लानत भेजता है। तो अगर आप तमाम फटे पुराने कपड़े नौजुबिल्लाह अल्लाह के लिए है बोल रहे हैं, अगरचे कि आपके दिल में नहीं है मगर आप बोल रहे हैं मुंह से, तो वो लानत देंगे नहीं देंगे, कुरान बोलिए आप। और इसके अलावा और एक है रब्बिल आलमीन है, ये देखिए रब है, अल ये आइन है, आ ल मीन, इसके क्या माने हैं, तमाम जहां का रब, हाँ ये याद रखिए, रब्बिल आलमीन। अगर इसको अपन पढ़ रहे हैं खाली रब अल, ऐन की जगह आप अलीफ या हमजा यूज कर रहे हैं, हमजा सबिया आलमीन, ऐन की आवाज नहीं कर रहे हैं। बहरहाल रब्बिल आलमीन जो अक्सर पढ़ते हैं, तो इसके माने हो जाएंगे, इसके पहले सुनिए सही माने, रब्बिल आलमीन तमाम जहानों का रब, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है, ये माने हैं असल में। अगर आप रब्बिल आलमीन बोले बगैर ऐन निकालेंगे तो उसके माने हो जाएंगे तमाम नौजुबिल्लाह, अगर ये है कि हम के साथ तमाम नौजुबिल्लाह फटे पुराने कपड़े अल्लाह के लिए है जो तमाम दुखों और परेशानियों का रब है। रब्बिल आलमीन बोलते हैं बगैर आइन की आवाज के, आलमीन अलम बोलते हैं दर्द को, तकलीफ को। आलमीन अगर आप बगैर आइन के बोल रहे हैं, अब डॉक्टर भी देखिए यहाँ अक्सर अलम कोई बोलते हैं दर्द और तकलीफ को बोलते हैं उस, और ऐन से अलीम, आलमीन जो है ऐन से है, यानी ये याद रखिए कि ऐन की जो आवाज है वो निकालना जरूरी है, यहाँ से ये ऐन है रब्बिल आलमीन, आलमीन। अगर आप ऐन नहीं निकालेंगे आवाज, खाली रब्बिल आलमीन आलमीन बोलेंगे तो बहरहाल ये मोटी मोटी चीजें थे। अभी कुरान के जब आप ये 29 हुरूफ आप पढ़ना सीखेंगे, वो रब्बिल आलमीन अगर बोलेंगे तो उसके क्या मीनिंग है, प्लीज दोहराते जरा, रिपीट करते। जी असल सही जो माने हैं रब्बिल आलमीन ऐन के साथ तमाम जहानों का रब है, सही माने हैं ये जो वो ऊपर लिखा ऐन के साथ रब्बिल आलमीन। अगर आप ऐन की आवाज नहीं निकालेंगे, हमजे से अलीफ से बोलेंगे रब्बिल आलमीन जो आमतौर पे हम पढ़ते हैं बगैर ऐन की आवाज निकालेंगे, तो दुखों और परेशानियों का रब, अलम से है आलमीन, अगर बगैर ऐन की आवाज को निकालेंगे तो बहुत फर्क हो गया जमीन आसमान का, बिल्कुल माने बदल जाते हैं। ये है सर। तो आप जज़ाकल्लाह, क्योंकि मैं लिख रही थी इस वजह से मिस हो गया था, इसलिए रिपीट करने के लिए बोली। जज़ाकल्लाह, थैंक यू का असल जज़ा। तो वैसे इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है सेशंस की,
45 मिनट्स के बाद एक ब्रेक आ रहा है, इसकी वजह से थोड़ी देर तक रुकना पड़ रहा है क्योंकि ये कंटिन्यूअस नहीं चल रहा है। फिर 45 मिनट्स में फिर इसको रीस्टार्ट करना पड़ रहा है, और जो सेशन एक रन हुआ उसको सेव कर रहा है सिस्टम कंप्यूटर में उसको, इसलिए थोड़ा 5-10 मिनट का गैप आ रहा है। तो इसका आप लोगों को भी मशक़ा और जो जो लिख रहे हैं उन लोगों को मौका मिल रहा है। देखिए जो भी ये वक्त दे रहे हैं अल्लाह ताला का करम है, रहमत है। एक दूसरे इतने दूर मुल्कों में भी रह के ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से कुरान पढ़ रहे हैं। पहले ज़माने में देखिए आप, कुरान शरीफ जब मुरतब नहीं हुआ था, कुरान किताबी शक्ल में नाजिल नहीं हुआ, हम सबको मालूम है। ये चालो खुलफाए राशिदीन के ज़माने में, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह के ज़माने में बहुत सारे हुफ़ाज़ शहीद हो रहे थे। तो पूरे हुफ़ाज़, पूरे सहाबी रसूल, खासकर सैयदना इमाम सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को जब इसकी इत्तला मिली तो आप एक मीटिंग तलब किए और फौरी ये एक एक्शन लिए कि हुफ़ाज़ क़त्ल हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, तो कल के दिन कुरान रहेगा नहीं आने वाली उम्मतों के लिए। तो उनका एहसान है कि उन्होंने, उनकी तदबीर और उन सहाबों की जो है कोशिश से किताबी शक्ल दी गई। तो बोलना ये चाह रहा था कि पहले सहाबी रसूलों को किसी को सूरह यासीन आधा याद था, किसी को सूरह कहफ कौन याद था, किसी को जो है सूरह फलक पूरा याद था। ऐसा छोटे मोटे जो सूरे है किसी को कुछ याद था। किसी को सुनना है सूरह अलम नशरह तो एक सहाबी के पास भागते थे। तो अलग अलग, और किसी के पास जो है चमड़ों पे कुछ लिखा हुआ था, किसी के पास ये झाड़ों की जो क्या बोलना चाहिए, छाल जो आती है, झाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लकड़ी के जो, उस पे लिखा हुआ था। तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का इसलिए उनका एक लक़ब है कामिल हयाई वल ईमान वो जामिल कुरान। आपने कुरान को जमा करने का हुक्म दिया और आपके ज़माने में कुरान को किताबी शक्ल दी गई। तो मुख्तलिफ मुल्कों में हुफ़ाज़ थे, सहाबी रसूल थे, आप सबको एक जगह करके कुरान को किताबी शक्ल दिए। तो अर्ज़े गुजारिश ये है कि अब हमको जो किताबी शक्ल दी गई, आपको एक सेकंड में, अब तो मोबाइल में भी कुरान आ गया, किताब तो छोड़िए आप, आपके मोबाइल में, हमारे मोबाइल में कुरान है। एक खटका क्लिक करिए सूरह यासीन खुल जा रहा है, एक खटका क्लिक करिए सूरह मुल्क आ जा रहा है, और एक खटका क्लिक करिए सूरह जो चाहे, मतलब आप सूरह 114 सूरों में से जो चाहे सूरह, जो चाहे आयत पढ़ सक रहे, इतनी आसानी के साथ हो गई। फिर भी हम जो है तजवीद और कुरान पढ़ने में बहुत कोताही बरत रहे हैं, बहुत अफसोस की बात है। और इतना बड़ा ग्रुप हम चला रहे हैं, तकरीबन 67 या 70 के करीब मेंबर्स है, 8-10 लोग ही इसमें शिरकत कर रहे हैं। खैर चलिए, शुरू में हैं, और अभी तो देखिए शाम का वक्त है, सब अपने घरों पे आ गए हैं और अपने जॉबों से, उससे अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ खुल के बैठिए। और ये जो भी हम सीखे हैं, और मैं सुबह फजर की नमाज के बाद 7 बजे से सैगिल में, उस ज़माने में आज से 25-30 साल पहले जो है मुख्तलिफ असातिज़ा के पास जाके पढ़ता था। शाली मंडे में इक़रा खिरत सोसाइटी चले गए, वहाँ तजवीद पढ़े। फिर वहाँ हज़रत अब्दुल्ला कुरैशी साहब के पास खिलवत में, पैलेस में जो है आप लहन की मश्क देते थे, वहाँ उनके पास जाके पढ़ते थे। दूसरे असातिज़ा हमारे क़ारी जमाल मोहम्मद ताहिर साहब जहाँ में कुछ पढ़ाते थे, वहाँ चले गए। तो ऐसा फिर के कई जगहों पे जाके पढ़े और कई असातिज़ा से सीखे। उसका आप लोग फ़ायदा उठाना चाहिए सब जने, अपने ख़ानदान वाले हो कि बाहर वाले, दोस्त अहबाब, सभी से गुजारिश है कि पाबंदी के साथ जो भी वक्त, हालांकि हफ्ता तमाम नहीं है, सिर्फ हफ्ते में 3 दिन ही है, तो बहरहाल इसकी कोशिश करिए। तो अब सूरह फातिहा क्या है, ये सबसे बड़ी कुरान है, ये एक ऐसा सूरा है जिसके बारे में अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाया। क्या फरमाया? वो सबआ मिनल मसानी, यानी ऐसी आया कुरान की सूरत है, ये चैप्टर है जिसमें 7 आयतें हैं। कोई और उसमें शायद हो ना हो, लेकिन ये और इसका लक़ब है फातिहतुल किताब, किताब को खोलने वाली है ये। और बाबुल कुरान भी कहा गया है, इसको कुरान का दरवाज़ा है। और सूरह फातिहा की बहुत फजीलत आई है। एक सहाबी रसूल को सांप काटा था, तो दूसरे सहाबी रसूल लेके आए, बोले कि या रसूलल्लाह, इनको सांप काटा है, तो आप कुछ पढ़े, उनके ऊपर दम करे, तो उनका वो जो जहर का असर था कम हो गया। फिर सहाबी रसूल पूछे, या रसूलल्लाह आप क्या पढ़े इनके ऊपर? तो बोले कि इसमें सूरह फातिहा पढ़ा, 7 मरतबा पढ़ के दम किया, तो उनका जो है जहर का, जो सांप का था, असर खत्म हो गया। तो देखिए इसकी बहुत फजीलतें हैं, इसलिए हम अपने अहले सुन्नतुल जमात के पास सूरह फातिहा पढ़ने की वो देते हैं कि इससे जादू टोना और बहुत सारे अमराज का इलाज है। और हजरत अली करम अल्लाह जो फरमाते हैं कि अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखने बैठ जाऊं तो 7,000 या 70,000 घोड़ों की जो है वो के ऊपर लाद के जो किताबें, उनके ऊपर वजन डाल के जो किताबें लिख सकते, उसकी तफसीर में लिख सकता हूँ, बोले खाली सूरह फातिहा की।
तो बहुत एक एक सूरा एक एक वो है। सूर्य जो है फातिहा है, उसके बाद सूर्य बकरा है, सबसे बड़ा सूरा कुरान का सूर्य बकरा है, जो काफी मतलब सबसे बड़ा सूरा है और उसमें बहुत सारे अहकाम हैं। और सूर्य यासीन कुरान शरीफ का दिल है। सरकार की हदीस है कि जो सूर्य यासीन याद करता है, मेरी ख्वाहिश है सरकार फरमाए कि हर दिन के दिल में सूर्य यासीन हो। और सूर्य यासीन के पढ़ने से यह है कि जो जिस चीज के लिए पढ़ा जा रहा है उस चीज के लिए है, फरमाए सरकार। कोई बीमार है उसकी सेहत के लिए पढ़िए, किसी को जॉब नहीं है उसकी नियत से पढ़िए, किसी की बख्शिश के लिए पढ़िए। हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद मुस्तफा शहीद साहब फरमाते हैं कि सूर्य यासीन को एक बार पढ़े तो 20 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। और एक मरतबा कोई जो है कब्रस्तान में जुमे के दिन कोई बुजुर्ग शख्सियत को नजर आए कि कुछ लोग बांट रहे हैं, मरहूमीन कुछ बांट ले रहे हैं, तो पूछे ये क्या बांट ले रहे हैं तुम लोग, क्या है? तो बोले कि कोई मरहूम का कोई रिश्तेदार आया था, अभी सूर्य फातिहा सूर्य यासीन पढ़ के हम लोगों को उसका सवाब बख्श किया गया, तो वो उसका सवाब बढ़ रहा है, तो हम लोग बांट ले रहे हैं आपस में। देखिए कितनी बड़ी फजीलत की बात है, 20 कुरान पढ़ने का सवाब है सूर्य यासीन पढ़ना। और उसके अलावा सूर्य मुल्क जो है अजाब खबर से बचाता है। सूर्य मुल्क 29वां पारा है, सूर्य यासीन 22 और 23 पारे के दरमियान है। और सूर्य मुल्क के बारे में है कि जो पढ़ने वाले को अजाब खबर से रोकता है। और उसी तरह आखिर के 10 सूर्य जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, नमाज में रिपीट होते हैं, सूर्य फील से सूर्य नास तक। और बड़े बड़े सूर्य जो है कहाफ, उसकी एक अपनी जगह वो है। वैसे ये कुरान खोल के बैठे तो उससे कई उलूम निकलते हैं, ये तर्जुमा, तफसीर, फिक़ा और जो है बहुत सारे इल्म से निकलते हैं। इंशाल्लाह कुरान शरीफ के तवस्सुस से हम जमा हुए हैं तो बहुत सारी बातें सीखेंगे इंशाल्लाह। खुद मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा, मैं भी एक तालिब इल्म हूँ। और जैसा कि सरकार की हदीस है, तुम माँ की गोद से खबर की गोद तक तालिब इल्म फरमाए सरकार, यानी मिनल महदी इलल लहद, यानी माँ की गोद से खबर की गोद तक आदमी तालिब इल्म है, तो हर स्टेज पे एक सीखता है। और हमारे उस्ताद के उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर अबुल फिदा प्रोफेसर अब्दुल सत्तार खान साहब फरमाते हैं कि हर जानने वाले के ऊपर एक जानने वाला। हम ये नहीं समझना कि हम सब कुछ जानते हैं, हमारे जानने वाले के ऊपर एक हर जानने वाले के ऊपर एक जानने वाला है। तो इल्म जितना भी सीखे सिखाए कम है, और जितना रिपीट करे इल्म पक्का होता है आपका। और जो है ये कुरान की का अदब यह है कि कुरान जहाँ पे रखी जाए उसकी तरफ पाँव नहीं करना, बेवजू हाथ नहीं लगाना, चाहे मर्द हो या औरत हो। अगर नहाने की हाजत है उसको हालत जुनूब कहते हैं, या हालत हैज है लेडीज में, तो वैसे उसमें हाथ मत लगाइए कुरान को। हाँ, वजू करके तहारत लेके आप हाथ लगाना चाहिए। हाँ, बेवजू जो याद है पढ़ सकते हैं बगैर हाथ लगाए के, लेकिन कुरान को छूना नहीं चाहिए बगैर, अगर हालत जुनूब में है, नहाना जिस पे लाजिम है। वो कुरान में खुद आया है, ला यमुस्सुहु इल्लल मुत्तहहरून, कुरान को हाथ नहीं लगाते लेकिन वो लोग जो पाक और साफ होते हैं। तो जो पाक और साफ होते हैं उनके, क्योंकि कुरान जो है अल्लाह का कराम, इसके बारे में आता है सूरह हशर में कि अगर कुरान पहाड़ पे नाजिल करते तो कुरान अगर पहाड़ पे नाजिल करते, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिया, अगर ये कुरान पहाड़ पे नाजिल होता तो पहाड़ जो है टुकड़ा टुकड़ा रेजे रेजे हो जाता था। तो ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका तुफैल है कि आपके क़ल्ब अत्थर पर ये नाजिल हुआ, फिर आपके नूर से ये कुरान में जो हैबत जो वो थी, उसकी जो है सख्ती थी, वो पूरी नरमी में बदल गई। और सरकार के सीने मुबारक से पीर साहबा इकराम और खुलफाए राशिदीन के सीनों से होते 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 हम तक पहुंचा। तो ये हमको हिफाजत करता है। सूरे बकरा में आयतुल कुर्सी है। आयतुल कुर्सी के बारे में आता है कि जो अगर रात में पढ़ ले तो सुबह तक कोई शैतान उसके करीब नहीं आता, सुबह में पढ़ ले तो शाम तक कोई शैतान उसके करीब नहीं आता। आज लोग गली गली फिर रहे हैं, जिन्नात पकड़ लिए हैं, असरात हो गए, दुआ करो हज़रत पढ़ के, यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं। उसके बजाय अगर आप आयतुल कुर्सी पढ़े, आयतुल कुर्सी उनको दम करके पानी पे पिलाएं, उन पे फूके, तो इंशाल्लाह अल्लाह से जो है उम्मीद है कि सरकार के सदक़े में जरूर वो जिन शयातीन जो भाग जाएंगे उनके ऊपर से। आयतुल कुर्सी पढ़ते रहिए। बच्चों जो चमक के उठते हैं नींद में से, घबराते हैं, हर चीज के लिए आयतुल कुर्सी, सूरह फातिहा, सूरह इखलास, नास और जो है फलक, ये भी पढ़ के दम करके वो करा करिए। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे जमा होने को कबूल करे, और जो भी कोताही हुई बोलने सुनने में अल्लाह ताला उसकी पकड़ ना करे। और या रब्बल आलमीन, अल्लाहुम्मा
صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللهم آنس وحشتنا في القبور اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار وجعله لنا حجة یا رب العالمین. ابھی انشاءاللہ ایک 5-10 منٹ دیے جاتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو کچھ سوال پوچھنا ہے تو پوچھیے. اپنے اپنے انمیوٹ کر لیجیے. آپ لوگوں کے جو موبائل یا کمپیوٹر سے دیکھ رہے ہیں تو میوٹ کا بٹن دبا ہوا ہے، آپ لوگوں کی آواز نہیں آ رہی ہے. انمیوٹ کر کے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیے، آج کے درس کے بارے میں یا تجوید و قرات کے بارے میں کچھ بھی سوال ہے تو پوچھیے. خطبہ سورہ فیل سے سورہ ناس تک بول کے کچھ بول رہے تھے، وہ نہیں سن سکی میں، مس ہو گیا. اچھا میں ہر چیز لکھ رہی ہوں، جو بھی آپ بول رہے ہیں وہ لکھ رہی ہوں میں، تو وہ جی چیز مس ہو گئی میرے سے. سورہ فیل جی سے سورہ ناس تک کیا بولے؟ جی جی میں یہ بولا کہ دیکھیے نماز میں جو ہم عام طور پہ ڈیلی ریپیٹ ہوتے ہیں سورے، تو سورہ فاتحہ پہلے ہے، سورہ فیل سے ناس تک یہ 10 سورے، 10 سوروں کی مشق کراؤں گا میں شروع میں. یعنی آپ کو پوری قرآن تجوید سے پڑھنا تو اولین یعنی وہ ہے، لیکن ابھی آپ کی نماز صحیح ہو جائے، آپ کی یعنی ہم سب کی نماز صحیح ہو جانے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ اور آخر کے 10 سورے فیل سے ناس تک اس کی پریکٹس کرنا تجوید و قرات کے ساتھ. یہ بولنا چاہ رہا تھا میں. شاید وہ بیچ میں بریک آ گیا وائی فائی، تو اس کے میں پریکٹس کراؤں گا. جی ہاں، سورہ فاتحہ پہلے اس کو کیا ہے ایک 8 دن میں اللہ چاہا تو زیادہ سے زیادہ 7-8 دن میں یہ مکمل ہو جائے گا سورہ فاتحہ سے ناس تک. یہ پڑھانے کے بعد انشاءاللہ ہم سب کی کیا ہے نماز جو فرضیت ہے وہ صحیح ہو جائے گی. اس کے بعد اب کیا ہے فرض ہونے کے بعد اب یہ سنت ہے سمجھیے باقی کی قرآن پڑھنا. اور جب قواعد آپ سیکھ جائیں گے تو تھوڑی تھوڑی مشق کر کے خود بھی آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ جو پہلے پڑھتے تھے اب اس میں فرق کتنا ہے، اور آپ خود دیکھ کے حروف جیسا آئیں گے، کیونکہ یہ 29 حرف سے ہٹ کے کوئی اور حرف نہیں ہے قرآن. الف سے یا تک جو ہے 29 حروف ہوتے ہیں. اس کو آپ کہاں سے ادا کرنا ہے جان جائیں گے، مخارج جان جائیں گے تو قرآن میں وہی ریپیٹ ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو آسان ہو جائے گا. سورہ فاتحہ سے ناس تک جو سورے جو بیچ میں حروف آ رہے ہیں وہی حروف ریپیٹ ہوتے ہیں دوسرے سوروں میں، تو اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. بس بعض قواعد کا خیال رکھنا، بعض جگہ لین کرنا پڑتا ہے، بعض جگہ اب میں تمام اصطلاحات جو ہیں اس کے جو ٹرمینالوجی ہے، اصطلاحات بولتے ہیں ٹرمینالوجی، تو ہر ایک فیلڈ کی ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے. اگر میں وہ سب بولوں گا تو آپ لوگ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے کہ بھئی یہ کیا ہے. یہ یعنی حروف مخلخلہ ہے، حروف جو ہے رہجی ہے، اور اپنے کیا نام ہے اپنے محموسہ ہے، شدیدہ ہے، رقوہ ہے، لین ہے، مدہ ہے. تو یہ اصطلاحات ہے، یعنی اصطلاحات یعنی اس کی ٹرمینالوجی ہے، اس کے قواعد ہے. میں آہستہ آہستہ اسی لیے ہم کو گریجولی پڑھایا جائے گا. ہاں گریجولی بیسک چیزیں لے کے چل رہا ہوں کہ ابھی ہم کو قرآن میں کیا ہے پہلے وہ جاننا چاہیے، پڑھنا کیوں ضروری ہے. اور جیسا کہ میں جو ضروری چیزیں بتایا، پھر بھی آپ لوگوں کو جو کوشچن آتے ہیں پڑھائی کے دوران آپ اچھا کریں یہ پوائنٹ نوٹ کر کے رکھ لیے. ویسے ہی جو بھی حضرات ہے، بچے ہو یا بڑے ہو، مرد و خواتین. اچھا، اور ایک کوئی لیڈی مجھے پوچھے تھے واٹس ایپ پہ فون کر کے کہ کیا لیڈیز کو ہی پڑھنا تجویز ضروری ہے کیا؟ دیکھیے قرآن جیسا نماز جیسا پڑھنا لیڈیز جینٹس کو بھی فرض ہے. سرکار کی حدیث ہے طلب العلم لو کان فی الصین، ایک فرمایا علم حاصل کرو اگر کو چائنا جانا پڑے. دوسری چیز حدیث کیا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں پہ فرض ہے. صرف ایسا نہیں کہ صرف مرد حضرات تجوید، کیونکہ عام لوگوں میں غلط فہمی یہ ہے لیڈیز میں کہ امامت تو نہیں کرتے نا عورتیں، تو تجوید و قرات کیوں جانے. لوگ